میں آپ سب کو اسلام. میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے یہ وقت نکالا اور خداوند کے نام کو جلال دیا. تمام پرستاروں کا، تمام انتظامیوں کا، تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی ہدیے نذرانوں سے خدا کے کام میں یہ شکر گزاری کی ہے، حصہ ڈالا ہے. تمام ان لوگوں کا جن کی محنتوں سے، کوششوں سے یہ پروگرام پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے. میں اپنے تمام ساتھیوں کا جن کی دعاؤں کے وسیلے یہاں پر کھڑا ہوں، اگرچہ مجھ میں کوئی اتنی قابلیت نہیں، لیکن میرے ساتھ ایسی ٹیم ہے جنہوں نے دن رات خدا کے لیے وقف کیا ہے. میری پیاری بہن ارشاد جس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے، سادھو اقبال صاحب، بھائی موسم صاحب ہیں، بھائی جوید صاحب ہیں، جن کی انتھک کوششوں سے اور ایسے سور میں ہیں جو 12 گھنٹے دعا کرتے ہیں. شفاق صاحب، کیسر صاحب اور دیگر تمام وہ چہرے میں جنہیں متعارف نہیں کرا سکتا، وقت بہت کم ہے. پیاری بیٹیاں جو پرستش کرتی ہیں، ہم سب مل کر خدا کے کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ اس کی مرضی پوری ہو. اور یہ نہ ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں، یہ خداوند زندہ خدا کے لیے ہے. سو وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ کلام خدا کی طرف آؤں. کلام خدا میں سے جو آج کی مرکزی آیت ہے، کلام خدا میں سے کلسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کروں گا. اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہر آنکھ بند ہو، کوئی آنکھ کھلی نہ ہو، ہر آنکھ بند ہو اور دھیمی آواز میں اپنے اپنے لیے کلام مانگے. ہالےلویا، ہالےلویا. خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کمزور جیسے انسان کو اپنے کام کے لیے کھڑا کیا ہے. خداوند تیری بھیڑوں کے لیے جو تیری چراگاہ میں آئی ہیں، خداوند تیرے کلام کی کثرت کو مانگتا ہوں. اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے. میں گٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر. تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو ورد پڑا ہے، ہم نے رات کو خدا کے عظیم خادم پاسٹر شکیل جوید صاحب سے خدا کے زندہ کلام کو سنا. میں اپنے آپ کو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں سمجھتا، لیکن یہاں پر ان لوگوں کی دعاؤں سے کھڑا ہوں جو محنت کرتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کی منادی ادنا اور کمزور لوگوں کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچے. سو خدا کے خادم نے بڑی تفصیل سے خدا کے کلام کو بیان کیا.
जिस एंगल से उन्होंने खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया, मैं कोशिश करूंगा कि उससे थोड़ा हटकर और कलाम खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। कलाम खुदा में से जो तलावत की है, ये खत मुकद्दस पलूस का है, कुलसियों के नाम। अगरचे मुकद्दस पलूस ने बहुत सी कलीसियों को कायम किया, लेकिन कुलसियों की कलीसिया को मुकद्दस पलूस ने कायम नहीं किया। लेकिन जब उसने इफ्रास से, जो कुलसियों का खादम था, इस कलीसिया के मुतल्लक सुना कि ये खुदा के लोगों से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद यीशु पर ईमान लाए हैं, खुदावंद यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ झूठे उस्ताद आए जिन्होंने ये तालीम दी कि कामिल निजात पाने के लिए हमें कुछ अख्तियार वालों, हुकूमत वालों की प्रस्तश भी करना लाजमी है। लेकिन मुकद्दस पलूस ने इफ्सत से अपने आदमी भेजे और ये कुलसियों को खत लिखा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से वाकिफ हूं। हमारे प्यारे भाई इफ्रास ने मुझे आपकी मोहब्बत के बारे बताया है कि आप खुदा के लोगों से प्यार करते हैं, आप खुदा के काम के लिए वक्त देते हैं, आप खुदा की कलीसिया को मजबूत करने के लिए खुदा के काम का हिस्सा हैं। लेकिन उसने उन झूठी तालीमात के मुकाबले के लिए और खालिस कलाम को उन तक पहुंचाने के लिए ये खत लिखा कि ये मुख्तलिफ जो रस्म रवाज को आप पर मुसल्लत किया जा रहा है, या झूठी तालीमात आपको सिखाई जा रही है कि निजात पाने के लिए ना सिर्फ हमें मूसा की शरीयत या कलामे खुदा की पैरवी करनी है, या यीशु मसीह की पैरवी करनी है, बल्कि इसके साथ साथ हमें कुछ अख्तियार वालों, हुकूमत वालों की भी पूजा करनी है, प्रस्तश करनी है। लेकिन पलूस ने उनको ये मुतारफ कराया कि खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का असली कलाम है, जो खुदा का कलमा है, जो खुदा की तरफ से भेजा हुआ है इंसान की मखलती के लिए, वो पूरी और मुकम्मल निजात देने की कुदरत रखता है, और उसके साथ पवित्र होकर, उसके रूह से ममूर होकर हम कामिल निजात पा सकते हैं। मेरे अजीज, यहां पर जो इस आयत में से मजमून रखा गया है, उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खूब का मतलब है अच्छा, उम्दा, खूबसूरत, नफीस, और शुक्रगुजारी किसी की एहसानमंदी करना, एहसान समझना, ममनूनियत। मेरे अजीज, मैं आपको इसके मुतल्लक अपनी आप बीती बताना चाहता हूं कि किस तरह इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करता है। मैंने भट्टे पर काफी
ईंटें बनाई हैं। और खुदा ने इस गुलामी के जुए से छुड़ाया है। कई वर्षों से खुदा ने आजाद किया है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये इस मजमून की बात नहीं और ना ये मेरी सोची समझी स्कीम है। मैं जब से इस काम से आजाद हुआ हूं, जब मैं कहीं भी जाता हूं और बट्टे पर ईंट डालने वाले लोगों को देखता हूं, तो बगैर सोचे समझे मेरे मुंह से ये निकलता है, मेरी सोच में, मेरे ख्याल में, मेरे दिल में ऐसा आ जाता है, खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस गुलामी से छुड़ाया है। मेरे अजीज, जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, जब आप उसकी एहसान मंदी को अपने मुंह से बयान करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक खुदा की शुक्रगुजारी होगी। और यकीनन जब किसी पर कोई एहसान होता है, तो उस एहसान के इवज शुक्रगुजारी की जाती है। और कलाम खुदा में हम देखते हैं कि अगर ज़बूर की किताब में से देखें तो ज़बूर 95 की दूसरी आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। और ज़बूर 100 की 4 आयत में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो। मेरे अजीज, मुकद्दस पलूस इन्हीं बातों के सबब से और कलाम अक़दस की रोशनी में कुलसियों की कलीसिया को ये खत लिखते हुए कह रहा है कि जिस तरह तुमने तालीम पाई है, उसमें तमीर होते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ और खूब शुक्रगुजारी किया करो। कभी कभी शुक्रगुजारी के उलट काम होता है, नाशुक्री होती है। और ये जिस्म के फलों में काम है, नाशुक्रापन। खुदा की शुक्रगुजारी के मुतरादिफ। और जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, ये उनकी जिंदगियों के लिए बाबरकत बात नहीं है। और कलाम खुदा में अगर हम रोमियो के खत के पहले बाब की 21 आयत में देखें तो लिखा है, इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। जो लोग खुदा की नेमतें हासिल करके भी, बरकतें पाकर भी शुक्रगुजारी नहीं करते, इसलिए तो दाऊद कहता है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। उसकी नेमतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर, उसकी बरकतों के लिए उसकी शुक्रगुजारी कर। और जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, उनके लिए ये लिखा है कि अगरचे उन्होंने खुदा की खुदाई को जान तो लिया, लेकिन उसके लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की और बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। और फिर 28 आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया। जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते, वो खुदा को जानना नापसंद करते हैं। जो शुक्रगुजारी करते हैं, वो और उसकी कुर्बत में बढ़ते हैं और नेमतें लेते हैं और बरकतें पाते हैं। और लिखा है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया, ताकि आपस में नालायक हरकतें करें। फिर अंजाम जो है वो गलत होता है, फिर हमें बरकत की बजाय लानत मिलती
मिलती है, लेकिन जो लोग शुक्रगुजारी करने वाले हैं, अगर हम दानियल की किताब के 6 बाब की 10वीं आयत को कोई भी पढ़ने में रहनुमाई करे, जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उन्हें सरबुलंद करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उन्हें उनके रुतबे को बुलंद करता है, उनकी इज्जत को बुलंद करता है। अगरचे उन्हें बहुत से दुख और मुसीबतों का सामना हो, लेकिन खुदा उन सब पर गालिब आने की तौफीक बख्शता है। अगर किसी ने निकाला है तो पढ़े दानियल की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं है। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। ये दानियल के मुतालिक लिखा है कि वो अगरचे उसे पता चल गया कि उसकी शुक्रगुजारी के मुतबादल कानून बन चुका है कि अगर ये शुक्रगुजारी करेगा तो इसका अंजाम क्या होगा। मेरे अजीज, दानियल की किताब में हम देखते हैं कि दानियल बाबल में अगरचे एक असीर यहूदी है, लेकिन इसकी हिकमत, इसकी दानश और इसकी रूहानियत, इसकी खुदा के साथ युगानगत ने इसे सरबुलंद किया है। इसे यहाँ पर 3 बादशाहों का सामना करना है। ये नबूकदनेस्सर के दौर में जब सरफराज किया गया तो इसे सूबे बाबल पर फरमान रवाई बख्शी गई, और जब उसके बेटे बेलशस्सर के दौर में इसे सरफराज किया गया तो इसे तीसरे दर्जे का पूरी मुमलकत का हाकिम बना दिया गया। इसके गले में जरी तोक डाला गया, लेकिन दारामादी जो कश्ती था उसने 62 बरस की उम्र में बेलशस्सर पर, बाबल पर हमला किया, बेलशस्सर को कत्ल कर दिया, बाबल के तख्त पर बैठ गया और फिर उसने यहाँ के लोगों की कबीना बनाई। कलाम खुदा में लिखा कि इसने 120 नाज़िम मुकर्रर किए, उन पर 3 वजीर थे और उन तीनों में जो पहले नंबर पर था वो कौन था? दानियल। चूंकि उसने पुरानी कबीना को देखा कि नबूकदनेस्सर ने, बेलशस्सर ने इसे सरफराज किया, उनके लगाए हुए तख्मे दानियल के पास थे, वो जरी तोक दानियल के गले में पहना हुआ था, और जब ये मुमलकत पर हुक्मरान हुआ तो दारा ने भी दानियल को उसकी हिकमत और दानिश के सबब से अपनी मुमलकत में वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। लेकिन जितनी भी कबीना थी वो दानियल के मुखालिफ थी। चूंकि ये यहूदी था और फिर ये कैदी था, असीर लोगों में से था, और इसकी कुर्सी सबसे बुलंद थी। ये पूरी मुमलकत में पहले नंबर का वजीर था, जिससे हम वजीर आज़म कह सकते हैं। लेकिन पूरी कबीना जो थी वो इसे मुजरिम बनाने के लिए, करप्शन का इल्जाम लगाने के लिए दिन रात भाग दौड़ करते रहे। जहां पर इसका आना जाना था, जो इसका काम था, उसकी तहकीक करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी एक नुक्ता भी ना मिला कि वो दानियल पर जुर्म साबित करें।
खुदा की शरीयत के मुताबिक हम इसके लिए कोई कानून बनाए ताकि ये या तो अपने खुदा का बागी हो जाए या फिर दारा की कबीना का और दारा के कानून का मुजरम बन जाए। और लिखा है कि उन्होंने एक आइन तैयार किया कि 30 रोज तक कोई शख्स दारा के सिवा किसी के आगे ना दुआ करे, ना किसी की प्रस्तश करे, ना किसी की शुक्रगुजारी करे। और कलाम खुदा में लिखा है कि उन्होंने वो आइन, वो कानून दारा के सामने पेश किया, उसको सब कुछ बताया, दारा की मोहर लगा दी, कानून पक्का हो गया। दानियल को पता चल गया कि कानून पक्का हो गया है, लेकिन वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं छोड़ सकता। लिखा है कि उसके घर का दरीचा यरूशलेम की तरफ था और वो हस्बे मामूल दिन में 3 बार अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता, उसके हुजूर दुआ करता था। जब कबीना के लोगों ने दानियल के घर के चौगिरद पहरा बैठाया, देखा कि इसने 3 बार दुआ की है खुदावन जिंदा खुदा के हुजूर, और फिर ये दारा के हुजूर पहुंच गए कि तेरी ममलकत में एक शख्स है, ना तो वो कबीना की परवाह करता है, ना वो तेरी परवाह करता है, ना वो इस कानून की परवाह करता है, और इस कानून के मुताबिक जरूरी है कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। दारा ने जब सुना, उसे पूछा उन्होंने कि फारसियों और मादियों का कानून 48 होता है, उसने कहा ऐसा ही है। जब उन्होंने बताया कि दानियल इस कानून को नहीं मानता, वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है, दारा दानियल का मुखालिफ नहीं था, दानियल की मुखालिफ बाकी कबीना थी। दारा ने शाम तक, सूरज डूबने तक बड़ी कोशिश की कि किसी तरह कोई आइन निकाला जाए, कोई ऐसी शिक हो, किसी तरह कोई मिले ऐसा मामला के दानियल को इस आइन से छुड़ाया जाए, दानियल को आज रात शेरों की मांद में ना डाला जाए। लेकिन शाम तक वो कानून की किताबें पढ़ाता रहा, कानून दानों से दरियाफ्त करता रहा, बड़े बड़े वकीलों से मशवरे करता रहा, लेकिन वो अपनी बातों में नाकाम हो गया। आखिरकार शाम को कबीना आ गई, उन्होंने कहा कि बादशाह इस आइन के मुताबिक दानियल को शेरों की मांद में डाला जाए। बादशाह उस कानून के आगे बेबस था और उसने मानने के लिए रजामंदी का इजहार किया, लेकिन वो दिल से नहीं चाहता था। दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। दारा बादशाह सारी रात फाका करता है, उसके सामने कोई मौसीकी का साज नहीं लाया जाता, वो सारी रात परेशान है, फाके में है कि खुदा दानियल को छुड़ाए। लेकिन इससे पहले कि दारा फाका करता, दारा ने दानियल से भी कहा कि तेरा खुदा जिसकी तू शुक्रगुजारी करता है तुझे छुड़ाएगा। और मेरे अजीज, जब रात गुजर गई और सुबह होते ही दारा ने शेरों की मांग के मुंह पर आकर बड़ी धीमी आवाज में कहा, ऐ दानियल, खुदा ताला के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा शुक्रगुजारी करता रहा है तुझे बचाने पर कादर हुआ? तो दानियल ने शेरों की मांग में से आवाज दी, ऐ बादशाह, जीता रहे, मेरे खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। मेरे शीश, दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया और ना मैंने तेरा गुनाह किया है, मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला हूं और मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और उसने शेरों के मुंह
खुदा उनके लिए सब कुछ कर सकता है। उन्हें मुसाइल का सामना हो सकता है, उनकी जिंदगी में दुख आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, मुसाइल आ सकते हैं, लेकिन खुदा उन्हें छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर हम कलाम खुदा में से अय्यूब की जिंदगी पर गौर करें तो अय्यूब एक शुक्रगुजारी करने वाला शख्स था। अगर हम कलाम खुदा में से उसके मुतल्लक देखें तो लिखा है कि उसकी सरजमीन पर अय्यूब नाम एक शख्स है जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। खुदा ने उसको बड़ी असमत बख्शी, खुदा ने उससे बड़ा सरबलंद किया। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बेशुमार नौकर चाकर। और अगर उसकी अकबाल मंदी को और गहरे तौर पर जानना चाहें तो अय्यूब की किताब पढ़ें और वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि जब अय्यूब कहता है, जब उसका चिराग मेरे सर पर रहता था, मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था। जब मैं शहर के फाटक पर जाता, जवान मुझे देखते और छुप जाते। उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते, अमरा बोलना बंद कर देते, रईसों की आवाज थम जाती। आंख जब मुझे देखती तो मेरी गवाही देती, कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता। ये उसकी इकबालमंदी थी। और जो उसकी जिंदगी में भलाई के काम है उसके मुतल्लक भी लिखा है कि मैं गरीब और यतीम की मदद करता, बेवा के दिल को ऐसा खुश करता कि वो गाने लगती है। अंधे के लिए मैं आंखें और लंगड़े के लिए पाँव, मैं अजनबी के मामला की तहकीक करता, मैं नाराज के जबड़ों को तोड़ डालता और उसके दांतों से शिकार को छुड़ा लेता। मेरे अजीज, अगर हम उसकी राष्ट्रवादी को देखें तो वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कवारी पर क्यों नजर करूं, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बकरा और आलमे वाला से कादरे मुतलक की तरफ से क्या बयास है। क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरिश्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजा पर घाट में बैठा, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर देती है। मेरे अजीज, अगर इंसान की जिंदगी में जिन कामों से अय्यूब ने परहेज किया ये काम हो तो फिर लिखा है कि ये एक ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती और इंसान के सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर देती है। ऐसे ही खुदा ने अय्यूब की जमानत नहीं दी। जब आसमान पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और खुदा के बेटे उसके सामने आए और शैतान भी उस कॉन्फ्रेंस में दाखिल हो गया। खुदा ने पूछा कि तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, मैं जमीन पर इधर उधर घूमता हुआ, सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल को देखा? उसकी मानव जमीन पर कामल और रास्तबाज, जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता, कोई नहीं है। इब्लीस ने कहा, शैतान ने कहा, क्या अय्यूब ऐसे ही तेरी शुक्रगुजारी कर रहा है? क्या तूने उसके चौगिर्द अपनी बाढ़ नहीं की?
इबलीस यहाँ पर सोचें, जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले हैं, खुदा उनके चौगिर्द अपनी बाढ़ खड़ी कर देता है। ये अलग बात है कि अशूब मैदान जंग बना हुआ है और उस पर जोर आजमाई हो रही है। मेरे अजीज, जब खुदा ने इस बात की जमानत दी और कहा कि मेरा बंदा अशूब उसकी मानद कामल और रास्तबाज जो बदी से दूर रहता हो कोई नहीं है, जो खुदा से डरता हो कोई नहीं है। तो इब्लीस कहता है तो अपनी बाढ़ उससे हटा दे और देखूंगा कैसे वो तेरी शुक्रगुजारी करता है। यही अशूब जो इतना इकबालमंद था, जिसको खुदा ने 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बेशुमार नौकर चाकर, बहुत कुछ माशरे में इकबालमंदी, सरबलंदी और इतनी इज्जत, शोहरत और बरकत दी कि अहले मशरक में ऐसा कोई नहीं है। और इब्लीस ने खुदा से इजाजत मांग ली और उससे शुक्रगुजारी से हटाने के लिए, मुनहरफ करने के लिए, इसके इवज ना शुक्रापन उसकी जिंदगी में लाने के लिए अपने पूरे हथियार इस्तेमाल किए। कलाम खुदा में लिखा है कि अय्यूब के बच्चे जो थे वो बारी बारी सब बेटे अपने पूरे बहन भाइयों की दावत करते और बारी बारी अपने घरों में उन्हें बुलाते, और जब उनके दिन पूरे हो जाते तो फिर अय्यूब उनके लिए सोख्तनी कुर्बानी करता, खुदा की शुक्रगुजारी करता और कहता कि खुदावन अगर मेरे बच्चों से कोई खता हुई है तो माफ कर दे। अय्यूब हमेशा, ये एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं कि जब प्रोग्राम है तो हम दिन रात उसकी तरफ ध्यान करें, जब प्रोग्राम निकल जाए, जब इबादत खत्म हो जाए, जब कन्वेंशन खत्म हो जाए, जब रूहानी इज्तिमा खत्म हो जाए, जब बड़े दिन की बातें खत्म हो जाए, जब ईस्टर का जुलूस खत्म हो जाए, तो हमारी वही बातें, वही चाल चलन, वही काम लिखा है। अय्यूब जो है हमेशा ऐसा ही करता था, इसलिए तो खुदा ने उसकी जमानत दी है। अय्यूब 16:19 में अय्यूब कहता है अब भी मेरा गवाह आसमान पर है और मेरा सामन आलमे बाला पर है। जब वो यही कर रहा है, इसी काम में मशगूल है, तो इब्लीस जब उससे खुदा से इजाजत लेकर आया है, लिखा है कि एक दिन अय्यूब के बड़े बेटे ने अपने घर में अपने तमाम बहन भाइयों की दावत की थी और अचानक एक नौकर अय्यूब के पास आ गया और उसने कहा बैल हल में झुके थे और गधे चल रहे थे और सभा के लोग हमलावर हुए और नौकरों को तय तेज कर दिया। एक मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अभी उसकी जबान से ये निकला ही था तो एक दूसरा आ गया, उसने कहा खुदा की आग आसमान से आई और भेड़ों को और नौकरों को भस्म कर दिया, फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे। अब अभी उसके मुंह से ये निकला ही था तो तीसरे ने पैगाम दे दिया, कश्ती 3 गोल होकर ऊंटों पर आ गिरे और ले गए, नौकरों को तेज कर दिया, फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अभी ये उसकी जुबान से निकला ही था तो चौथा भी आ गया कि तेरे सब बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और अचानक बियाबान से एक बड़ी आंधी आई, उस घर के चारों कोनों से टकराई और वो घर गिर पड़ा
और तेरे सब बेटियां बेटे उस छत के नीचे और जितने नौकर उस ज़ियाफत में मेजबानी कर रहे थे वो सब उस छत के नीचे आकर मर गए। फक्त मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। और कलामे खुदा में लिखा है ये जो शुक्रगुजारी करने वाला शख्स था, जब इसने एक ही वक्त में, एक ही लम्हा में, थोड़े ही वक्त में ये सारी खबरें सुनी, सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे भी खत्म हो गए, तो भी लिखा है कि इसने अपना पैरा हंचा किया, अपना सर मुड़ाया और सजदे में पड़ गया और मुंह से फिर वही कहा, खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी हो। ग्रेसीस, बात यहां पर ही खत्म नहीं हो गई। लिखा है कि फिर एक कॉन्फ्रेंस आसमान पर हुई। खुदा के बेटे, खुदा के हजूर हाजिर थे और शैतान भी वहां पर चला गया। खुदा ने फिर वही सवाल किया, फिर वही जवाब। शैतान ने कहा कि कलाम खुदा में अगर हम अय्यूब की किताब के दूसरे बाब की 3री आयत को देखें तो लिखा है 4थी आयत को, खाल के बदले खाल, बल्कि इंसान अपना सारा माल अपनी जान के बदले दे डालेगा। इस बात को तो आप जानते हैं, कहानी को, सवाल जवाब को जानते हैं। इब्लीस ने कहा कि अगर उसकी जान को दुख मिले फिर वो तेरे खिलाफ बात कहेगा, फिर वो तेरी तकफीर करेगा, फिर वो तेरे खिलाफ बुरा भला कहेगा। और खुदा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। खुदा ने उसकी जमानत दी थी। खुदा ने कहा था कि जमीन पर उसकी मानद रास्तबाज और कामल कोई नहीं जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि इब्लीस ने फिर उसके चौगिर शिकंजा कस दिया और लिखा है कि उसे सर की चांदी से लेकर पांव के तलवे तक दर्दनाक फोड़े हुए उसकी जिंदगी तलख हो गई। अगर हम अय्यूब की किताब देखें तो वो इन दुखों को यूं बयान कर रहा है, जब उसे सर से पांव तक दर्दनाक फोड़े इब्लीस के सबब से हुए तो लिखा है कि वो कहता है रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते, मेरी आंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं, मैं बगैर धूप के काला हो गया हूं, मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है, मेरी हड्डियां हरारत से जल गई, मेरे गुर्दे मेरे अंदर फना हो गए, मेरी मुसीबत तराजू में रखी जाती तो वो समुंदर की रेत से भी भारी उतरती। जब इस कदर अय्यूब को दुख का सामना करना पड़ा, इस कदर असियत नाक जिंदगी गुजार रहा है, सर से पांव तक
शुक्रगुजारी करता रहूंगा। मेरे अजीज, ये शख्स इस कदर दुखी होने के बावजूद भी खुदा की कोई तकफीर नहीं करता। अगरचे इसने अपने जन्मदिन पर लानत की है और बहुत सी तल्ख बातें की हैं, लेकिन खुदा की तकफीर नहीं की, खुदा की शुक्रगुजारी से बागी नहीं हुआ। और अपनी इन बातों के लिए भी अगर हम आखिरी बाब में पे देखें तो ये तौबा करता है और खुदा इस पर फिर भी खुश है। और लिखा है कि खुदा का गजब इसके उन साथियों पर भड़का जिन्होंने इसके दुख को देखा, और ऐसा भारी दुख कि ये 7 दिन और 7 रातें इसके पास बैठे रहे हैं, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि अपनी जुबान खोले, क्योंकि ये इंसानी अक्ल सोच समझ से बाला तक दुख था और वो 7 दिन तक खामोश रहे हैं। लेकिन जब अपनी जुबान खोलते हैं तो बहुत सी बातों का इल्जाम अयूब पर लगाते हैं कि शायद इसे किसी गुनाह की सजा मिल रही है, और इस सबब से खुदा का गजब इसके दोस्तों पर भड़का और खुदा ने उन्हें कहा कि अगर तुम अपनी बख्शिश चाहते हो, अगर तुम बचना चाहते हो, तो फिर 7 बैल ले लो और मेरे बंदा अयूब के पास चले जाओ। वो तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी की दुआ करे, उसे तो मैं कबूल कर लूंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। और कलाम खुदा में लिखा है, जब अयूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने अयूब की असीरी को खत्म कर दिया। खुदा ने ना सिर्फ उसके दोस्तों को माफ किया, बल्कि खुदा ने अयूब को फिर बहाली दे दी, फिर बरकत दे दी। और वो जिसके पास पहले 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां थी, अब जब खुदा ने उसे बहाल कर दिया तो 14,000 भेड़ें और फिर 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियां इसके पास हो गई। और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने इसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां अता की, और अहले मशरक में अयूब की बेटियों की मानद औरतों में से कोई खूबसूरत नहीं थी। मेरे अजीज, जो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुदा की नेमतों की लिए एहसानमंद होते हैं, अगरचे उनकी जिंदगी में मुसाइल हो, परेशानियां हो, दुख हो, लेकिन वो अपने खुदा को नहीं छोड़ते, उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं। खुदा उन्हें बरकत देता है, खुदा उन्हें बहाल करता है, खुदा उन्हें दुगनी बरकत देता है। और कलाम खुदा में लिखा है कि अयूब के पास जो बाकी साल खुदा ने बख्शे, वो इस मुसीबत से निकलने के बाद 140 बरस जिंदा रहा और उसने 4थी पुस्तक अपने पोतियां पोते देखे। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये अरसा दराज, ये एक लंबा पीरियड है। और खुदा जानता है कि जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं उन्हें वो सर बुलंद करने के लिए वक्त मुकर्रर करता है। मेरे अजीज, मुकद्दस परूस कुलसियों के खत को इसी लिए कहता है कि उसमें जड़ पकड़ते रहो और तमीर होते जाओ और खूब शुक्रगुजारी करते रहो। अगर हम कुलसियों के खत के 3 बाब के 12 और 13 को देखें तो लिखा है, बस खुदा के बरगज़ीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोख्ती और हिलम और तहम्मुल का लिबास पहनो। और आगे लिखा है, अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर वैसे ही
पर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। मेरे अजीज, बेशुमार लोग अगरचे मसीही हैं, अगरचे प्रस्तुत करने वाले हैं, कलाम को जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी जिंदगियों में नाशुक्रापन है, शुक्रगुजारी नहीं है। इसलिए घरों की फजा जो है वो खराब है, लड़ाई झगड़े हैं, बदअमनी है, खस्ताहाली है। मुकद्दस पौलुस इन्हीं खतरों को देखते हुए वो कुर्सियों के खत के तीसरे बाब में अगर 18, 19, 20, 21, 22 से आप देखें तो यहाँ पर लिखा है, ऐ बीवियों, जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शोहरों की ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। ऐ फर्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो। ऐ नौकरों, अपने मालिकों के फरमाबरदार रहो। मेरे अजीज, आज खानदानों में एक दूसरे के लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं है, घरानों में शुक्रगुजारी नहीं है, कलीसियाओं में शुक्रगुजारी नहीं है। हम एक दूसरे की बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कलाम कहता है कि एक दूसरे की बर्दाश्त करो, जिस तरह खुदावंद यीशु ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। लेकिन इसके मुतरादफ है, इसके उलट है, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इसलिए चर्चेस में बर्बादी है, तबाही है, कलीसियां बर्बाद हो रही हैं, खानदान बर्बाद हो रहे हैं। माँ बेटी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटी माँ की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेटा बाप की फरमाबरदारी नहीं कर रहा, बाप बेटे को दिक कर रहा है। घरानों में बदअमनी है, अमन की फजा नहीं है, इसलिए खस्ताहाली है, इसलिए तबाही है, इसलिए बर्बादी है। मुकद्दस पौलुस कहता है उसमें जड़ पकड़ते चलो, लेकिन हमारे घराने, हमारे खानदान, हमारी कलीसियाएं, हमारे चर्चेस जिनकी जड़ें खोखली हैं, जड़ नहीं पकड़ रहे, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे की शुक्रगुजारी करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार नहीं है, बहू सास के लिए शुक्रगुजार नहीं है, सास बहू के लिए शुक्रगुजार नहीं है। काश के सब सासें और सब बहुएं नोमी और रूत की तरह, अगरचे आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, नाउमीद है, मुस्तकिल तरीक है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए शुक्रगुजार है। नोमी अपनी बहू को कह रही है, मेरी बेटी अपने मेके चले जा, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है, मेरी बेटी अगर आज की रात खामद भी मेरे पास होता और खुदा मुझे फिर से कोई बेटा देता, और क्या तू फिर भी इतनी उम्र मेरे पास ठहरती, बर्दाश्त करती उसके जवान होने तक, लेकिन अब तो मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, मैं भी बेशोहर हूँ, तू भी बेशोहर है, किस आस पर तू मेरे साथ जाना चाहती है? अपने मेके चली जा, खुदा तुझे तेरे शोहर के घर में आराम बख्शे। शायद आज की सास अपने बेटे के घर में अपनी बहू के लिए आराम नहीं मांगती। आज की बहू रूत, जिसका मुस्तकबिल तारीख है, ना उस मुल्क को जानती है, ना उन लोगों को जानती है, ना उनके रस्मों रवाज को जानती है, सिर्फ उसके खुदा का नाम सुना है, उसकी कुदरत को माना है, जाना है, और कहती है, नहीं मेरी सास, नहीं मेरी माँ, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं इस तारीकी में, इस नाउमीदी में तुझे तन्हा नहीं जाने दूंगी। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरे लोग
बहनों, आज जो बहुएं हैं, कितनी बहुएं हैं जो आज इस कलाम के मुताबिक अपनी सास को माफ करना चाहती हैं। कितनी सास हैं जो अपने पोतियों पोतों की बरकत के लिए, चाहे वो ये पसंद करती हैं या नहीं, लेकिन खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करते हुए अपने पोतियों और पोतों की बरकत के लिए, अपने घराने में अमन की फजा कायम करने के लिए अपने बहू को माफ कर सकती हैं जो आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं। कितने बेटे हैं जो अपने वालिदैन को आज उन ज्यादतियों के सबब से जो वो समझते हैं हमारे साथ हुई हैं, माफ कर सकते हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों बेटों को माफ कर सकते हैं। आज कलाम की रोशनी में कितने कलीसिया के लीडर हैं जो कलीसिया के लोगों को माफ कर सकते हैं। कितने कलीसिया हैं जो अपने उस्तादों की किसी भी तलखी या खफगी के सबब से अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के काम को बहाल करने के लिए अपने आप को खुदा के कलाम के आगे आजिज कर सकते हैं। आज अगर चाहते हैं हमारे घरों में अमन की फजा हो, हमारी कलीसियों में, हमारे चर्चेस में, तो फिर हमें कुर्सियों के पुरुष के खत के मुताबिक जड़ पकड़नी है, तमीर होना है खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है। अब मरूसी गुनाह हमें मगलूब नहीं कर सकते। मरूसी गुनाह जो है वो हम पर गालिब नहीं आ सकते। कलाम खुदा में कुर्सियों के खत में मुकद्दस परूस कहता है कि खुदावंद यीशु ने हुक्मों की उस दस्तावेज को जो हमारे नाम हमारे खिलाफ थी सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, उसका कफारा दे दिया है। लेकिन अगर बहू सास को माफ ना करेगी तो ये जुर्म आप पर आयद होगा। अगर सास बहू को माफ ना करेगी तो अपने खुदा की नाफरमानी करेगी। अगर बेटा बाप की फरमाबरदारी नहीं करेगा तो खुदा के कलाम का बागी होगा। आज कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम के सामने आजिज़ी अख्तियार करेंगे। अपने हाथ बुलंद करे। जो बहू सास में लड़ाई है, बेटी माँ की बात नहीं मानना चाहती, माँ बेटी की नहीं सुनती, बेटा बाप की नहीं मानता, बाप बेटे की नहीं सुनता। कितने लोग हैं जो गुजरी हुई बातों को भुला सके या एक दूसरे को माफ कर सके, वो अपना हाथ बुलंद करें। कलाम की रोशनी में वो अपना हाथ बुलंद करें और वो अपने कदमों पर खड़े हों। हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा ने आज आपसे कलाम किया है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के गुनाह माफ करो। अगर बहाल होना चाहते हो, सरफराज होना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो, तो आज एक दूसरे की माफी का ऐलान करें। सब आंखें बंद हो, सब आंखें बंद हो, कोई आंख खुली ना हो। बराए मेहरबानी, खुदा की हजूरी यहाँ पर है, खुदा मौजूद है यहाँ पर, कोई आंख खुली ना हो, सब आंखें बंद हो। जिन्होंने हाथ बुलंद किए वो खड़े हो जाएं, वो खड़े हो जाएं और अपने दिल खुदावंद के सामने उंडेल दें। और वो तलखियां और वो एक दूसरे के खिलाफ जो हमारे सेनों में बगावतें हैं, उनको अपनी जिंदगियों से जुदा करें। यीशु मसीह के खून को अपने लिए मांगे। कलाम खुदा में मुकद्दस पौलुस कहता है कि उसने हमें तरीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने असीस बेटे की बादशाही अता की है और फिर ये सारी तलखियां बुला दे। प्यारी बहन और सास से गुजारिश है कि वो सामने आए और जितने बीमार हैं वो